So I had a question ki, how much do you think real life affects cinema and how much does cinema affects real life according to you? मैडम ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है. Of course it affects real life. Symbiotic relationship है. Cinema is a mirror of society तो कहते ही हैं, but cinema also I think anticipates changes. Cinema is also an advanced guide to a lot of things. जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे होमोसेक्सुअलिटी पे 10 साल 15 साल पहले तक कोई फिल्म बनती नहीं थी. तो करण जौहर ने जब दोस्ताना बनाई तो उसमें एक तरह से द गाइज वर जस्ट प्ले एक्टिंग अ सिचुएशन. कल हो ना हो में भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स थे ना जो एक थोड़ा सा दिखाया था. सो वो प्ले एक्टिंग सिचुएशन था. सो इन अ सेंस these films were kind of sussing the public mood. So they were like advanced experiments. Or what was not being shown, say 10 years or 15 years now, is now a routine commonplace now. So films anticipate and tell you also stories in their own way. So, for this filmy session today, our moderator is Asavari Deshpande. She is an avid reader, she loves reciting poetry, and she is an ardent music lover. She is also a professional compere, a voiceover artist, a scriptwriter, and she also co-runs her own poetry club for all the poetry lovers in Nagpur. Born and raised in the city, she has discovered her passion for public speaking at an early age. She also really enjoys reading and reciting poems in Marathi and Hindi. So please welcome our moderator Asavari for today. Our author, Avijit Ghosh, he works as a senior editor for the Times of India in New Delhi. A journalist for more than 25 years, he has written extensively on Hindi cinema and sports. He has also briefly been a film critic for The Telegraph and The Times of India. Today, he is here to talk to us about his book, When Ardha Satya Met Himmatwala. Welcome, sir. Thank you for joining us at the festival. I would now like to request Asavari to please escort him on the stage. And before we begin, I would like to request all of you to put your phones on silent mode or switch them off. If you must attend a call, please move outside the hall and take your call so that you don't disturb the session. Asavari, over to you. Hello. Thank you so much, Mugdha. Hi, everyone. Thank you so much for joining us for this wonderful session. India has one of the biggest film industries in the world. Biggest, I'm saying, in terms of the number of movies that are produced in India are probably the highest. And each era had its own specialty. Like the 60s and 70s saw amazing songs, so golden era of Hindi film music probably. And then came the 80s, which saw the biggest transition. There were movies which were extremely popular, and then there were also parallel cinema, art movies that were being made, which were popular among the critics and people who understood cinema. So we are going to discuss about the 80s decade, and I'm pretty sure everyone who's a cinema lover has their own favorites from that decade. So we are going to know interesting stories about those movies and some behind the scenes facts and even interesting anecdotes. So I'm thrilled to have Mr. Avijit Ghosh, the author of When Ardha Satya Met Himmatwala. So thank you so much for joining this session and becoming a part of Vidarbha Literary Festival 2024. So let's start with very basic question, that what propelled you to research more about the 80s, or what made you write about the 80s decade? What was the most attractive thing for you about the 80s? See, the 80s are a kind of a black mark, in Hindi cinema. And in popular memory, we don't really sort of
80s में क्या हो रहा था, you know, that's people, you know, you talk to people off the cuff, अरे यार, it was a period of, you know, sort of bad music, you know. So the memories that we have of this period is negative, largely. When I started looking at the period closely, because I grew up with it, I thought कि ये इतना बुरा period था क्या? And this is what actually led me to work more on this. And in a sense, we can say that what Dickens says about, you know, the way he starts A Tale of Two Cities, he says it was the best of times, it was the worst of times. It is a bit like that. You know, it was the best of times and it was the worst of times. But we have to understand, if it was the worst of times, why it was the worst of times. पहले तो मैं बेस्ट ऑफ टाइम्स के बारे में बताता हूँ. I'll just read out some films names. अर्ध सत्य, आक्रोश, सतह से उठता आदमी, दामुल, होली, देव शिशु, जाने भी दो यारो, कथा, कलयुग, पार्टी, परिणति, सलीम लंगड़े पे मत रो, राव साहब, पेस्टनजी, मोहन जोशी हाजिर हो, आरोहन, मिर्च मसाला, खंडहर, हिप्पीपुरे, ये सारी पैरेलल सिनेमा की ये सारी मील की पत्थर फिल्म्स हैं. यू नो, दीज आर मूवीज दैट अभी भी, यू नो, विल हैव, वी रिमेंबर दीज मूवीज. दे वन अवार्ड्स, दे वर पॉपुलर मूवीज ऑल्सो, सम ऑफ देम. देन यू कम टू द मिडल ऑफ द रोड सिनेमा. हाँ, सारांश, मासूम, शक्ति, खूबसूरत, पॉपुलर फिल्मों में अपने पराए, अमिताभ बच्चन की फिल्मों में नमक हलाल, अर्थ, मासूम, अंकुश, नाम, मिस्टर इंडिया, निकाह, छोटा चेतन, सत्ते पे सत्ता, गुलामी. यू नो, it has, this period has a whole gamut of everything that you have. And yet, why do we remember this period as a bad period? तो इसमें हमारे जो हमारे किताब के टाइटल है, उसका जो दूसरा पहलू है, हिम्मत वाला, वो हमारे माइंड मैप में वो है. When we think of 80s, we think of films like हिम्मत वाला, मवाली. मवाली में कैसे गाने थे? 4 बार मारेंगे, 1 बार गिनेंगे, सर तेरा फोड़ेंगे, दांत तेरा तोड़ेंगे. ये गीत था. हाँ, उस समय में निशाना एक फिल्म आई थी, काफ़ी चली थी वो, जाना ज़रा सामने में आना, मैं बांध रहा हूँ निशाना. इसमें किस तरह के डायलॉग्स हैं? कविता देखने में रुई है पर चुभने में सुई है. हाँ, कादर खान के डायलॉग्स हैं. तुम वो ये कोट पैंट पहन के अपने आप को राजकोट समझ रहे हो क्या? These are the things that have colonized popular imagination, which is why 80s को हम एक बड़ा फूहड़ सा पीरियड मानते हैं. पर 80s को और भी समझने के लिए, मतलब मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड लगता है, और उसके मैं 3-4 वजह से मैं बताऊंगा. एक तो ये पीरियड है ना कि 80s का पीरियड ये क्रिकेट का पीरियड था. हाँ, 1983 में कपिल देव ओडीआई क्रिकेट जीत के आते हैं. उसके पहले सिनेमा जो था, दैट वाज आवर प्राइम एंड प्रीमियर आउटडोर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. और हम सिनेमाज जो थे, मतलब उसकी तैयारी होती थी, लोग, इट वाज अ फैमिली थिंग. इनफैक्ट इट वाज एक्चुअली फैमिली गोइंग एक्सरसाइज. उस समय काफ़ी पेट्रियार्कल था, क्योंकि हमारे जो घर की महिलाएं कौन सी फिल्म देखेंगी, ये पिताजी तय करते थे. और पिताजी पहले फिल्म देखते थे, वो सेंसर बोर्ड का सेंसरशिप तो अलग होता था, लेकिन पिताजी की सेंसरशिप अलग होती थी कि ये देखने लायक है कि नहीं, लड़की देख के बहक तो नहीं जाएगी, यू नो. इसलिए वो मैं तुलसी तेरे के आंगन की ऐसी फिल्में जो हैं, जो 70s की हैं, उसी तरह की फिल्में देखना है. इसीलिए पूरा फैमिली ड्रामास का पूरा जो एक साउथ की फिल्में हैं, जो उस समय बन के आती थी, जो 60s एंड 50s में, जैसे कि प्रसाद प्रोडक्शन हो गया, AVM हो गया, इनको अच्छा बैनर माना जाता था कि साफ सुथरी फिल्में बनाते हैं. जैसे राजेश्री प्रोडक्शंस की भी जो हिंदी की सारी जो फिल्में हैं, हिंदी के, साफ सुथरी, घर की लड़कियां, घर के लोग, सब लोग बैठ के फिल्म देख सकें, ऐसा है. बैठने से अगर कोई ऐसी फिल्म ना हो कि देखने के अगल अगल लोग देख रहे हैं कि भाई वो क्या देख रहा है, यू नो, ऐसा महसूस नहीं हो. तो ये 70s और 60s का था. लेकिन 80s आते आते ना, पहली बार जब कपिल देव कप जीत के आए, तो सिनेमा का एक राइवल बना, वो है वनडे क्रिकेट. देखिए, 74 से 83 तक ना इंडिया में सिर्फ 55 ODI मैचेस खेले थे.
84 से 89 के बीच जो जब कपिल देव जीत के आए तो 113, ये सारे मैचेस जो थे, ये बीसीसीआई समझ गई ये सोने की मुर्गी है, दिस इज अ गोल्डन एग एंड इट नीड्स टू बी कैश्ड, और क्रिकेट के जो मैचेस थे वो दिखाए जाने लगे लाइव ऑन टेलीविजन। तो 80s में सिनेमा में क्राइसिस आ रहा है धीरे धीरे, उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि ये जो है जो क्रिकेट है वो एक राइवल बन के इमर्ज कर रहा है। जब क्रिकेट के मैचेस चल रहे हैं इस समय, क्योंकि ये पहली बार जो हम लोगों ने देखना शुरू किया है लाइव क्रिकेट 7 घंटे के लिए, तो जो नून शो होता था पहले और मैटनी शो क्रिकेट के प्रेमी नहीं देख रहे हैं, तो थिएटर कलेक्शंस आर कमिंग डाउन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है वो टेलीविजन का उठना, हाँ, टेलीविजन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, right. जो कि हम लोग और बुनियाद बुनियाद उससे जो शुरू हो रहा है। तो इससे भी हमारी जो सारी जो शाम का जो कैलेंडर था पहली बार वो चेंज होने लगा हमारे फैमिलीज में। इसके पहले जो हमारे शाम जो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, सब जगह कोई किसी घर कभी भी आ सकता था, लेकिन इसके बाद से पहली बार हिंदुस्तानी समाज में ये होना शुरू हुआ, स्पेशली इन अर्बन इंडिया जहाँ पे टेलीविज़न पहुँच चुकी थी, कि हाँ भाई नहीं, वो आज तो हम लोग हैं, आज शाम को ये देखेंगे या जाने भी दो यारों देखेंगे, अभी हम नहीं जाएंगे। तो वो सुबह को रामायण आने लगा 88-89 में। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये टेलीविज़न के अराउंड हमारा जो घूमने फिरने का जो सारा प्रोग्राम है ये चेंज होने लगा। तो हमारे सोशल रिलेशंस उसमें एक परिवर्तन आ रहा है बिकॉज ऑफ सिनेमा, और ये सब 80s में हो रहा है। सो एक सिग्निफिकेंस है 80s का इस मामले में। एक और भी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है उस समय 80s में, वो है वीडियो पायरेसी। पहली बार वीडियोस जो है हमारे घर में आते हैं। इसके पहले वीडियोस जो था, सिनेमा जो था, was a family experience, it was a friend experience, and it was an outdoor experience. For the first time with the videos, entertainment is coming home. ये हमारा आजकल के ज़माने का जो टेलीविज़न है और जिसका एक मतलब चरम पे जो पहुंचा है OTT को लेके, इसका प्रिकर्सर है। द अर्ली विस्पर्स ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एंटरटेनमेंट जो है ये 1980s में शुरू होता है। Absolutely. और ये एक बहुत ही मतलब एक सिग्निफिकेंट चेंज है, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ एंटरटेनमेंट जो है कि हम खुद क्या हम देख रहे हैं ये तय हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि जैसे महिलाएं जो थी अपनी जो फिल्में जो फिल्में देखना चाहती थी वो देख रही हैं। उस समय जब इन द आफ्टरनून पीपल आर गोइंग आउट, बॉयज एंड गर्ल्स इन देयर हॉस्टल्स, दे आर सीइंग व्हाट दे वांट टू सी। सो ये जो पहले एक रोक टोक होती थी वो पहले से थोड़ा सा कम हुआ है। वो एक पेट्रियार्की का जो होल्ड है ना, वो अपने आप टेक्नोलॉजी इज वर्किंग अगेंस्ट इट। और इसमें सब देखिए कि 80s में आप लोगों को ये भी याद होगा कि पाकिस्तानी सीरीज़ जो थे पहली बार काफ़ी पॉपुलर हुए। धूप किनारे, बहुत परछाइयाँ, ये काफ़ी मतलब उस ज़माने के मतलब ऐसे सीरीज़ हैं जो बहुत अच्छे थे और लोग उस समय देखते थे इनको। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी मतलब पॉपुलर हुई। तो ये कुछ फंडामेंटल चेंजेस हैं जो 80s के पीरियड के कारण, विच इज़ वाई आई ऑलवेज फील दैट 80s इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड. Yeah, absolutely. And while we are talking about the personalization of our entertainment, this book narrates a very interesting fact, a story that जो दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी जो था, their first major business was video piracy. So they used to make these cassettes. They used to make these copies of cassettes. So Friday, for example, some movie releases. By Sunday, they used to have very good quality of cassettes circulating in Mumbai ka black market. So because of that also, the box office collection of these movies got affected majorly, which was also one of the reasons why box office पर ये movies ने इतना अच्छा नहीं किया in terms of earning money. The next point that I want to come to is, there were like few people who were ruling the 80s decade in terms of actors, actresses, directors, even producers, as you said. So how did this transition happen from Rajesh Khanna ruling the 70s, who was very, chocolate boy kind of romantic kind of hero, to Amitabh Bachchan ruling the 80s, who was very serious and angry young man. So how did this transition happen? अच्छा, पहले मैं आपको एक एनेक्डोट बता देता हूँ पायरेसी को लेके, उसके बाद मैं राजेश खन्ना के बारे में बताता हूँ। पायरेसी को लेके मतलब पायरेसी इतना ज़्यादा बढ़ गया था दैट बॉम्बे की मतलब पायरेसी वाज ऑपरेटिंग एट मेनी लेवल्स. इट वाज ऑपरेटिंग एट अ
एट अ मेजर लेवल इन द जो उसका सेंटर था गल्फ में, वहाँ से वो पायरेटेड आते थे. लेकिन देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल in small in Bombay, वो middle class housewives, they were also getting into this whole piracy business. And I was talking to B Subhash, the maker of Disco Dancer and Tarzan for my book, and उनसे मैंने पूछा एक बार, उन्होंने मुझे बताया बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कि एक बार वो उसके घर में एक जो नेबरहुड वो वीडियो वाला होता था, सबके घर में होता था एक वाला जो फ़ोन कर दो कि भाई वो फिल्म ला के दे दो, तो वो आ जाता था, आपके स्कूटर पे आके दे जाएगा, 15 रुपये 20 रुपये लेगा. तो वो आया, तो उसकी वाइफ थी घर पे, बी सुभाष की वाइफ घर पे थी. तो उससे पूछा कि मैडम आपको फिल्म देखना है टार्जन? तो उसने कहा कि कौन सी टार्जन? बोली जो आपके हस्बैंड ने बनाया है और कल रिलीज होने वाली है. तो पायरेसी हैड रीच्ड सच हाई प्रोपोर्शनेट लेवल्स दैट फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले वो जो नेबरहुड वीडियो वाला है वो आके आपको टार्जन का वो वीडियो उसको दे रहा है. तो ये क्या कहते हैं, जब इसकी वाइफ ने फ़ोन करके बोला कि तुम यहाँ फिल्म बना के डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हो और यहाँ देखो पहले ही से बिक रहा है, सो ही सेड आई थ्रू अ फ्यूज, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल चढ़ गया बी सुभाष का. So he called up his distributor in the Gulf and he said कि तुमने तो मेरा फिल्म को बर्बाद कर दिया because तुमने लीक कर दिया वीडियो और देखो अब क्या होगा फिल्म का. So then his Bombay guy called up and Bombay guy said कि नहीं आप चिंता मत करो, फिल्म के बहुत लंबे क्यूज़ हैं, बहुत से लोग फिल्म देखने के लिए एडवांस बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे. तो उन्होंने कहा कि अच्छा, पर फिल्म को तो फ्री में मिल रहा है. बोला नहीं, फिल्म का जो एडवांस रिपोर्ट है ना, लोग आजकल वीडियो पहले देखते हैं, तो वीडियो रिपोर्ट बहुत अच्छा है फिल्म का, इसलिए लोग उसको देखना चाहते हैं. सो द वीडियो बिकेम लाइक अ ट्रेलर. अगर ट्रेलर में वो फिल्म पसंद आ रही है तो लोग उस फिल्म को जाके देख रहे थे. विच इज़ वाई 80s और 90s में आते आते बाय द टाइम 80s इज एंडिंग, you find that the number of flops are dramatically increasing. Only 10% films are making money, 10% films are breaking even, and 80% films are losing money. आप कह रही थी about the अमिताभ बच्चन. How transition happened from Rajesh Khanna to Amitabh Bachchan. हाँ. देखिए, राजेश खन्ना का राज जो था ना, वो 69 से लेकर 73 तक था. 75 तक आते आते राजेश खन्ना मतलब was basically in the back foot, क्योंकि रोमांस का जो एरा था वो ख़त्म हो गया था. ऑलरेडी 73 में दीवार और ये जंजीर आ जाती है और अमिताभ बच्चन इज द किंग ऑफ द थिंग. एंड 75 में शोले आती है, देयर इज ऑलरेडी दीवार इज ऑल्सो देयर. सो अमिताभ इज ऑन द वे अप. राजेश खन्ना की 3 फिल्में 70s में हिट होती हैं. हाँ, बट एक होता है ना, जनता का सुर बदल गया. हाँ, वो हुआ था 1970s में. वो रोमांस वाज इन एंड पीपल वांटेड टू सी अ सॉफ्टर काइंड ऑफ लव स्टोरीज. आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, हाँ, ये सब फिल्में देख रहे हैं. अमर प्रेम, ये सब लोग देख रहे हैं और देख के एक इट इज मोर लाइक वुमन ड्रिवन. सी राजेश खन्ना's heroic rise was essentially driven by 2 factors which I believe are the same that propels the rise of Shah Rukh Khan. Rajesh Khanna was loved by kids and he was loved by women. Shah Rukh Khan का भी जो core constituency है वही है, the woman and kids. Women more than kids, but kids are also in a very big way. So राजेश खन्ना का ये जो चीज़ था ना, वो शिफ्ट जब 73-74 में जब शिफ्ट हो रहा है, the shift is happening from woman to the male. मर्द जो है, that has emerged as a constituency, the young male. And इस young male का जो articulation है, इस यंग मेल के बारे में जो क्या कहते हैं, जो उसको स्क्रीन पे द आर्टिकुलेशन इज हैपनिंग थ्रू अमिताभ बच्चन कैरेक्टर, दिस एंग्री यंग मैन विच इज रिटन बाय सलीम जावेद, एंड उसके थ्रू से हो रहा है. तो 75 तक आते आते अमिताभ हैज एक्चुअली टेकन ओवर एंड धर्मेंद्र इज ऑल्सो देयर. राजेश खन्ना इज ऑन द बैक फुट. ही इज ट्राइंग हार्ड बट ही इज नॉट मेकिंग इनरोड्स. और 75, 76, 77 ये पूरा ये अमिताभ का ही फेस है एक्चुअली. हाँ, बिकॉज ही इज बिगर than any other films. बाकी लोगों के फिल्म्स हिट हो रही हैं, लेकिन अमिताभ का he is like reeling out films after films. जब असली हीरो तब होता है ना, जब फिल्म कितनी भी घटिया हो, वो फिल्म हिट होती है.
अमिताभ बच्चन, खून पसीना, नटवर लाल, ये सब जो फिल्में हैं, ये अगर अमिताभ नहीं होता तो कोई नहीं देखता. अमिताभ ने इन फिल्म को दिखाया लोगों को. सो अमिताभ वॉज द फिल्म. सो ये उसका सारा फेज चल रहा है. 80s में भी अमिताभ ठीक ठाक पे हैं, मतलब यू नो दोस्ताना इज कमिंग एंड ऑल दैट. सो ही इज देयर. अमिताभ के साथ जो वो 80-81 उसके बाद भी ये सब है, लावारिस वगैरह हैं. एक बार वो कुली का जो इंजरी होता है ना अमिताभ के साथ, उसके बाद इफ़ यू सी उसके बाद वाली फिल्में, यू नो उसका एक क्या बोले, उसका उनका चेहरा में वो जो एक नमक होता है ना, वो थोड़ा सा कम होने लगा है, यू नो. एंड आई थिंक बाय दैट टाइम, यू नो, दिस द एंग्री, हर चीज़ साइकिल में होता है. So the angry young man circle has already moved ahead of it, and Amitabh is no longer the angry young man. He has become the angry young middle-aged man. So he is kind of circulating himself. He is recycling the past, and there is no. In fact, सलीम जावेद ने भी शायद कहा है कि हमने अमिताभ को कोई नया चीज़ नहीं दिया करने के लिए in the 80s. You know, he was. तो उसके फिल्म्स तो हिट हो रही हैं अभी भी, जैसे कि लावारिस भी हिट हुई, नमक हलाल हिट हुआ, फिर शराबी भी हिट हुई. बट अमिताभ इज नॉट द अमिताभ, यू नो. पीपल एक्सपेक्टिंग हिम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. जो एक आधी फिल्म में है, सिर्फ सत्ते पे सत्ता में ही इज डिफरेंट. हाँ, लेकिन 88-89 तक आते आते आप देखिए तो जैसे शहनशाह इज जस्ट, यू नो, इज जस्ट एन ओल्ड मूवी. फिर old movie in an old bottle, you know. And then you have films like Ganga Jamuna Saraswati, you have Tufan, you have Ajuba. These films are actually bad movies in the Amitabh oeuvre, and he actually has to negotiate a very tough 90s. By the end of the 80s, Amitabh is in a bad wicket, and he had to endure a very tough 90s. He returns in 2000 with KBC. He returns in 2000 with KBC. Till then, Amitabh television is a small screen. But लोग उस समय जो बड़े बड़े स्टार्स थे ना, वो टेलीविजन में काम करने से घबराते थे. Amitabh enters there and he turns the television into 70 mm. Suddenly, after that, if you see all the stars start doing, you know, Govinda does Jito Chappad Pharke. There are other stars also who come in, and after that, television is no longer a touch me not for the big stars. But वो उसके बाद फिर अमिताभ also reinvents himself and he starts doing character roles and he's still continuing. So in a sense, he's Karmyogi and hugely successful. You know, nobody has kind of understood the times and, you know, readjusted and kept on, you know, reinventing himself and moving up. So while we are talking about the actors who ruled 80, we spoke about Amitabh Bachchan ji. So it's only fair and, you know, logical that we also speak about the actresses, especially Sridevi, who ruled the 80s, and the title Himmat Wala में मुझे लगता है श्रीदेवी की वजह से हिम्मत वाला was, I mean, she contributed significantly in Himmat Wala's success with her dance moves and, you know, her beauty. Everybody was crazy behind her features. So how do you see rise of Sridevi in the 80s? You see, it's said that Hindi films, you know, are the opium of the masses. So if Hindi films are the opium of the masses, then for a certain kind of cinema, Sridevi was its biggest supplier of opium. You know, That's a good way to put it. She created, you know, she managed to take people to a fantasy level. Jo, people always look at heroines as somebody whom we admire, appreciate, but who at some level is unattainable. Sridevi was a combination of all three. She, मतलब बाद में मैंने उसका सबसे बड़ा तो अचीवमेंट ये है कि 1980s was still an action male oriented era. उस era में she became bigger than most male stars. अगर आप मिस्टर इंडिया देखें तो एक्चुअली वो मिसेस इंडिया है, बिकॉज मिस्टर इंडिया जो है ही इज वैनिश्ड. द एंटायर फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड श्रीदेवी. देयर आर मेनी सच फिल्म्स. आप चांदनी देखिए,
चांदनी में शी इज द सेंटर. नाउ यश चोपड़ा has not made a single hit in the 1980s. Yash Chopra was making great films in the 70s. He was making Diwar, he was making Trishul. But 80s में once he does Silsile, उसके बाद से he doesn't have any big hits in his career. It's a bad phase for him. When he returns with this film, Chandni. And who is responsible for it? Sridevi. ये जो सारा शिफॉन साड़ीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये श्रीदेवी का ही दिया हुआ है, अलॉन्ग विद भानु अथैया, यू नो द ड्रेस डिजाइनर, उनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है, उनका है. तो श्रीदेवी इज वेरी वेरी फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ इन दैट सेंस ऑफ व्हाट शी मेंट टू द ऑडियंस. एंड एक तो और भी चीज था दैट शी कुड एक्ट, बट कॉमेडी जो है वो बहुत हीरोइंस नहीं करती हैं, स्पेशली मेन स्ट्रीम हीरोइंस. शी वॉज वन हीरोइन हु वॉज वेरी वेरी गुड एट कॉमेडी. She had some comic timing, which was excellent comic timing. She had comic timing. Yeah, which is what makes Sridevi a very very special star in that period. Yeah. So discussing stars and actresses in the 80s cannot be concluded or completed without discussing the one and only disco dancer Mithun Chakravarti, who basically brought disco, who made 80s a disco era. And there's a very interesting anecdote in the book which was narrated by a director which you have written. Umesh Mehra. Yeah, that at some film festival they spotted Robert De Niro and they went to Robert De Niro to, you know, greet him and take his autograph, and they saw like a flock of people running past them to meet someone. So they turned around and you know, they were curious, ये कौन है जिसने रॉबर्ट डिनीरो को टक्कर दे दिया, and that guy was मिथुन चक्रवर्ती. So having said that, Mithun Chakravarti did not give a lot of hits. In fact, Mithun Chakravarti has given the most number of flop movies in the Indian cinema. So what happened in 80s that Mithun Chakravarti magic actually worked? नहीं, वो होता है ना कि the stars who emerge in a particular era, they are a product of the times. Finally 80s में आप जो देखिए कि when the video piracy happens, you know, the middle class abandons theatre. That is one of the defining features of the 80s. The middle class stopped going to the theatres और वो घर में बैठ के अपने वीडियो में फिल्म देखने लगता है. बहुत कम फिल्में हैं जो वो देख रहा है. विच इज़ वाई इन द 80s इफ़ यू सी, जो बासु चैटर्जी की फिल्में हैं, जो गुलजार की फिल्में हैं, जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में हैं, इनको जो इज्जत और सक्सेस जो 70s में मिला था, 80s में रिलेटिवली स्पीकिंग इट्स अ बैड टाइम फॉर देम. इनफैक्ट बासु चैटर्जी वंस सेड दैट अगर आज बिमल रॉय भी फिल्म बना रहे होते तो शायद उनको ऑडियंस नहीं मिलता. Because that kind of a change that had happened in the 80s. So what happens in the 80s is when the middle class stops going, the only people who are going to the theaters are the underclass. So the underclass who are going, they are the core audience of the 80s. And core audience always creates their own heroes. उसके हिसाब से ही प्रोड्यूसर जो है फिल्म चूज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदता है. So it was the underclass which, you know, जो जिसको हम कहते हैं ना, जो रेडी वाले, you know, the daily wagers, the rickshaw pullers, जो घर में बैठ के in the comfort of air condition, they were not watching VCRs. They are the ones who are the only ones who become the primary audience of theaters and cinema. तो ये लोग जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और इन लोगों का जो है ना, जो हीरो है वो इन लोगों का निकलता है. सो मिठुन कम्स आउट ऑफ दैट. इसी पहली बार you know, till then Amitabh Bachchan is also a darling of the underclass, but Amitabh is not really representative physically or even from his pedigree of that class. You know, he looks, he does not, he is not Vijay of the Docks. He still has some aristocratic features, some royal looks. मिठुन जो है ना, वो जमीन का लड़का लगता है. You know, he has the smell of the earth that he emerges of.
जब जब उसकी कोई फिल्म आती है ना, जैसे हिसाब खून का, उस्तादी उस्ताद से, गरीबों का दाता, तो ये यहाँ पे द ऑडियंस और हीरो दोनों में एक समन्वय है. देयर इज अ लिंकेज, पीपल आर कमिंग टुगेदर, यू नो. ये चीज़ हो रही है उस समय. और मिठुन का डांस करने का स्टाइल देखिए, यू नो, इट इज़ नॉट अ सोफिस्टिकेटेड स्टाइल, पर उसका वो जो कमर, यू नो, लचकाना, यू नो, दैट वो जो पेल्विस, यू नो, द यूज ऑफ द पेल्विस, द वे ही डांस्ड इन डिस्को डांसर, वो पूरा मतलब क्या बोले, सिनेमा हॉल में तांडव हो गया, यू नो. जनता पागल हो गई. मैंने तो रांची के श्री विष्णु थिएटर में देखा था, सारे लोग खड़े हो गए. हाँ, लोग क्या करते थे उस समय, जो गेटकीपर होते थे, कोका कोला की बोतल की वो जो टिप्पी होती हैं वो रखते थे और वो पर्दे पे फेंकते थे. लोग सोचते थे कि पैसे डाल रहा, फिर लोग सचमुच के पैसे डालने लगते थे. और ये मतलब वो एक अलग माहौल था, वो सिंगल स्क्रीन थिएटर, यू नो, इट वाज एन एंटायरली डिफरेंट एरा, डिफरेंट टाइप, वेयर सिनेमा वाज, यू नो, सारे जो लाइफ के प्रॉब्लम्स थे वो सिनेमा सॉल्व करता था. सो इट वाज दैट लिविंग ऑफ दैट फैंटेसी, और मिठुन इसी से निकला. और इसी तरह से if you want me to paraphrase that in one sentence, Mithun was an idea whose time had come. You know, it's like that. And same goes for Govinda also. Govinda 2 साल बाद आता है, but what does he does? ये पूरा जो एकदम ये करके जो पूरा पिनबॉल मशीन की तरह पूरा जो आगे से नीचे वो लाइट्स जल रही हैं और आके आई एम अ स्ट्रीट डांसर, ये वो गा रहा है. तो ये जो स्ट्रीट डांसर है और स्ट्रीट डांसिंग जो है ना, इससे फाइनली जो वो लोग थे जो दे फाउंड अ हीरो ऑफ देयर ओन. और चूंकि वो माहौल भी ऐसा था जिसमें ये सिंगल स्क्रीन वाज द ओनली स्क्रीन, तो जिस पे लोग देख रहे थे, देयर वाज नो मल्टीप्लेक्सेस एट दैट टाइम. मल्टीप्लेक्स स्टार्ट्स हैपनिंग इन द मिड 90s, व्हिच अगेन, यू नो, क्रिएट्स दैट करण जौहर ब्रांड ऑफ सिनेमा. अगर मल्टीप्लेक्स नहीं होता तो दिल चाहता है नहीं होता. Absolutely. तो ये अभी भी जो सारा सिनेमा से कोर ऑडियंस से लोग रहे, जैसे लोग अभी कह रहे हैं कि OTT के कारण फिल्म बहुत अच्छी बन रही हैं. हाँ, अच्छी बन रही हैं, वो मिडिल क्लास के सेंसिबिलिटी के हिसाब से अच्छी फिल्में बन रही हैं और लोग देख रहे हैं उसको. सो वो उसका कोर ऑडियंस है. तो इसी तरह से 80s का अपना कोर ऑडियंस था और उसके हिसाब से लोग फिल्म देख रहे थे. We will come to parallel cinema, discuss about it, but before I would like to ask, so you spoke about single screen और ये सब, तो 80s में ये सारे challenges भी काफ़ी थे, like theaters were not in a very good condition. Plus there was distributors Raj, which you speak about in your book. There was also this strike. So why so much trouble was going on behind the scenes, and why so much trouble faced by all these actors and producers and directors? नहीं, ये तो आप देखिए ना, क्राइसिस हो रहा है ना, क्योंकि इसमें क्राइसिस इस तरह से हो रहा था कि फिल्में बन रही हैं, थिएटर्स बहुत कम हैं. अगर हम इंडिया के थिएटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें 80s का, तो डू यू नो दैट 53% ऑफ इंडियाज ऑल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स इन द 80s, अभी भी शायद ऐसे ही हो, अभी का मेरे पास डेटा नहीं है, वेयर ओनली इन 4 स्टेट्स, जो साउथ के 4 स्टेट्स हैं, वहीं पे सारे सिनेमा हॉल हैं. बाकी सारा जो स्टेट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 50% थिएटर्स. तो ये जो फिल्में बन रही थी उस समय, और अगर ये जो लोग अपने घर में फिल्में देख रहे हैं, ये तो पायरेसी से फिल्म देख रहे हैं. इसका जो पैसा है वो ना डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है ना प्रोड्यूसर को मिल रहा है. लेकिन इस समय गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, सेल्स टैक्स बढ़ा देती है ऑन फिल्म प्रिंट्स. और ये एक ऐसा पीरियड है जिस समय बिकॉज फिल्म्स कम हिट हो रही है ना, प्रोड्यूसर्स डेस्परेट भी हो रहा है, तो फिल्में वो बना रहा है और स्टार्स के दाम बहुत बढ़ रहे हैं. जो इसका 10 फिल्म में, एक फिल्म में भी हिट हो रहा है ना, ही इज चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मिठुन के मेरे ख्याल से हैड साइंड से अबाउट 70-80 फिल्म्स और समथिंग लाइक दैट. उसके 1.5 साल या 2 साल के बाद उसके डेट्स मिल रहे थे. हाँ, ऐसा था उसके साथ. और काफ़ी मतलब एक बुरा स्थिति था. इनफैक्ट राज कपूर इन द 70s ओनली once told शशि कपूर that you are a taxi, because लोग 3-3 शिफ्टों में काम करते थे. तो सुबह का शिफ्ट 4 घंटे का, फिर दोपहर का शिफ्ट 4 घंटे का, रात का शिफ्ट 4 घंटे का, 4-4 घंटे का 3 शिफ्ट में. तो इसी से फिल्म की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई थी.
तो इन सब चीज़ों को लेके ना फिल्म इंडस्ट्री में क्राइसिस चल रहा था, एंड इट वाज फिल्म मेकिंग बिजनेस, एज आई सेड सम टाइम बैक आल्सो, दैट फिल्म्स बहुत फ्लॉप हो रही थी, सो इट वाज बिकमिंग एन अनटेनेबल बिजनेस. तो इसको लेके फिल्म इंडस्ट्री में 1986 में एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होता है, जो कि लगभग 30 दिन तक चलता है, और 30 दिन तक सारे सिनेमा हॉल्स हिंदुस्तान में बंद थे. मतलब नॉर्थ इंडिया में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सारे सिनेमा फिल्म्स बंद थे. और this is one of the most successful strikes in Hindi film history. बॉम्बे के मैदान में मतलब ट्रक के ट्रक स्टार्स, दे सब बड़े बड़े स्टार्स, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, सुनील दत्त, फिर वी शांताराम, राजेश खन्ना, ये सारे जो स्टार्स थे, ये लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च वगैरह किया था. बाद में लोग धरने पे भी बैठे, काफ़ी दिनों तक चलता रहा. फिर गवर्नमेंट के साथ डील हुआ, एंड इन 1980s another very interesting thing happens is for the first time stars come into politics. Yeah, there were a lot of stars. 1980s में पहली बार, इसके पहले हिंदी फिल्म स्टार्स जो थे कभी लोकसभा के थ्रू से नहीं आए थे, और 80s में 3 स्टार एक साथ आते हैं, अमिताभ बच्चन, वैजयंतीमाला एंड सुनील दत्त. एंड देन देयर वाज एक कवि भी थे, बाल कवि बैरागी, उनकी कुछ फिल्मों में गाने भी हैं, जैसे कि सुनील दत्त का रेशमा और शेरा वगैरह में ही ऑल्सो वन. इसके अलावा 3 डिस्ट्रीब्यूटर भी जीते थे. तो इन लोगों के आने से एक दे थॉट दैट थोड़ा सा मतलब था. एंड अमिताभ बच्चन वाज क्लोज टू राजीव गांधी, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. तो द स्ट्राइक हैड फाइनली मतलब जो आउटपुट्स था वो अच्छा ही था. मतलब सम कंसेशंस वर मेड बाय द गवर्नमेंट, एंड दे वर क्वाइट हैप्पी विद इट. The interesting thing about the takeaway point from about the strike is that there is always a power in the collective, जो कि the film industry कभी अपने आप को एक इंडस्ट्री नहीं समझती थी, लेकिन एक डिस्पैरेट यूनिट था कि ये ग्रुप है, वो ग्रुप है. ये पहली बार ऐसा हुआ that they came together and they thought of themselves as a community, and they acted accordingly. And I think in some sense there is also probably a lesson for us in today, that there are lots of film stars who basically comment on Twitter, they're Twitter warriors, but there is no actual representation of actors in politics. अगर कुछ करना होता है तो जमीन पे ही करना होता है. Absolutely. So with all of this, let's talk about art movies and parallel cinemas. A lot of people were making wonderful movies, and faces like Smita Patil, Shabana Azmi, Nasiruddin Shah, even Om Puri, they were leading, like they were proper actors who made 80s a rich decade with their acting, with their contribution. So हिम्मत वाला को भी ऑडियंस मिला और ये पैरेलल मूवीज को भी ऑडियंस मिला. what was there any magic formula that worked in parallel cinema, that something? नहीं, मैजिक फार्मूला नहीं था ये. न्यू वेव सिनेमा जो कहते हैं, हाँ, जो आप पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, जो भी आप कह लें, इसका जन्म तो 69 में हुआ था. 70s इज द पीरियड, हाँ, जब when it comes on its own, where Shyam Benegal's Ankur is a kind of one of the defining movies, Ankur, Nishant and all. In 80s we see a more an angrier and probably a more urgent kind of new wave cinema. So I have called it in my book New Wave Cinema 2.0. तो ये जो फिल्म्स हैं, जैसे कि आक्रोश है या अर्धसत्य है, इट इज़ मोर अर्जेंट, इट इज़ मोर रॉ. इसमें ज़्यादा कुछ करना है. मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे 70s में इन फिल्म्स को देखने के लगता है कि सिस्टम सड़ गया है, लेकिन करें क्या. इन फिल्मों को देखने के बाद लगता है कि सिस्टम सड़ गया है और अब इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए. लेट अस गेट डाउन टू एक्शन. And in some sense, if you see the way Akrosh ends or Ardhasatya ends, it's a kind of a cataclysmic, catalytic, kind of a cry, a thing is there. जो 4 हम कहते हैं ना, बीटल्स को फैब 4 कहते हैं. पैरेलल सिनेमा जो है, इंडिया का जो न्यू वेव सिनेमा है, इसमें भी एक फैब 4 है, which is these 4 guys, Om, Nasir, Smita and Shabana. And ये
इन्होंने एक तरह से एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट किया था। जिस तरह से कुछ लोगों के लिए अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना ये बड़े स्टार्स थे, उसी तरह से एक सेलेक्ट इंटेलिजेंशिया या आर्ट हाउस लविंग मूवी क्राउड या थोड़े से जो रिफाइंड लोग हैं वो इनके फिल्म में देखने जाते हैं। I still have seen a lot of people who enjoy watching movies like Mandi या अर्थ या फिर मिर्च मसाला, as you pointed out earlier. Even a few movies made by Sai Paranjpe. So they also found a very classy audience to them. So ये एक अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही ताज्जुब की बात है कि दोनों फिल्म को अपनी अपनी ऑडियंस मिल गई थी, बट कमर्शियली स्पीकिंग नहीं, इनके साथ ऐसा था ना, फाइनली इन चारों ने, जैसे कहावत है, मतलब कहते हैं कि भूखे भजन न होत गोपाला। हाँ, मतलब भूखे भजन हम कैसे करें। तो ये जो सारे जो अच्छे अच्छे फिल्म जो ये लोग बनाते थे, इन ये फिल्मों में कोई पैसा नहीं मिलता था। मुझे याद है, उस फिल्म का नाम नहीं मुझे याद है, शायद उसका नाम शहादत था या कुछ था। इस ज़माने में 80s में एक वीडियो फिल्म्स भी बनती थी, जो नारी हीरा जो स्टारडस्ट के मालिक हैं, इनका एक शीबा फिल्म्स करके होता था, ये लोग वीडियो फिल्म्स बनाते थे। तो इसमें ओमपुरी ने भी एक फिल्म में काम किया था, वीडियो फिल्म्स में। बकवास फिल्में ही होती थी, बट लोग देखते थे, मतलब बुरे भी नहीं होते थे। तो ओमपुरी से पूछा गया, ओमपुरी एक किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे विद वन ऑफ दीज पैरेलल हाउस आर्ट हाउस मेजर डायरेक्टर्स। सो ही सेड कि मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो ही सेड क्यों? बोला नहीं, मुझे उस फिल्म की शूटिंग करनी है। तो बोला उसके लिए जाओगे? तो ही सेड यस, वो 15 दिन के काम में उसमें 75,000 मिलेंगे, और इसमें मतलब पूरी फिल्म की शूटिंग थी, उसमें 5,000 मिलता था, वॉट एवर इट वॉज। सो इनको इस तरह की जो मजबूरियां हैं वो होती हैं, पर इन्होंने बाद में मैंने एडजस्ट भी किया। जैसे स्मिता तो जैसे अमिताभ के साथ उसने कई फिल्में की और अच्छी फिल्में भी की, जैसे शक्ति वगैरह भी था। उसके अलावा आई थिंक आज रपट जाए, या हाँ, नमक हलाल, एंड शी बिकेम क्वाइट एन एस्टैब्लिश्ड स्टार also in the mainstream film industry, just like Shabana. Yeah. Because Shabana also, you know, with films like Arth and Masoom, you know, ये 80s के middle of the road cinema थी, so they did well. Om, I thought, adjusted better to commercial films than Nasir. But they also did a lot of films. But essentially, they are all remembered for their work in the parallel cinema. And where, so for instance, नसीर का जैसे स्पर्श में जो उन्होंने जो ब्लाइंड प्रिंसिपल का जो रोल किया है, आई थिंक दैट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड इन प्लेइंग अ विजुअली चैलेंज कैरेक्टर। वैसा ना किसी उसके बाद किसी ने उतना अच्छा नहीं किया। और सेम विद दैट डम कैरेक्टर प्लेड बाय ओम पुरी इन दैट फिल्म, आक्रोश की बात करें। हाँ, yes. हाँ. He's not dumb, he's silent. He's not speaking up. Yeah, because of trauma, he goes silent. So I would like to sum up, like there are many things to still discuss, but one last thing that I would like to discuss before we sum up the session and open the forum for audience. We can't conclude discussing about Indian cinema without discussing the music, because most of our music comes from our movies itself. Our music industry and film industry are not separate. So Asha Bhosle once said that the difference between the old and the new songs are that old songs were good, that's why they were popular. New songs are popular because they are making so many reels on social media and making them popular. So in 60s and 70s, people would buy another ticket and go to theatre specifically to listen to the songs. But in 80s, that changed a lot, because many songs like even Tathaiya Tathaiya, I'm a Disco Dancer came, but then there were other good songs like Arth में गज़ल थे या फिर कुछ आर.डी. बर्मन के soulful गाने थे. So how do you look at the music scene in the 80s? देखिए 80s का जो डोमिनेटिंग साउंड है ना, इट्स अ साउंड ऑफ डिस्को। हाँ, इट इज़ अ साउंड ऑफ डिस्को। और डिस्को का जो राइज होता है इन इंडिया, इट्स एक्चुअली फॉरेन स्पर्ड राइज। 1970s, लेट 70s में जॉन ट्रेवल्टा कम्स टू द सीन, एंड जॉन ट्रेवल्टा's सैटरडे नाइट फीवर और दो और फिल्में थी, ग्रीज एंड मोमेंट बाय मोमेंट।
इससे विदेश में जो नाइट क्लब्स में जो डांसिंग वगैरह होती थी, मतलब जो 80s का धीरे धीरे एक एट अ सबटेरेनियन लेवल डिस्को का राइज हो रहा था, जॉन ट्रेवोल्टा क्या नाम है, दैट गॉट फ्रंट पेज्ड, यू नो, एंड it suddenly became a mass form which millions and millions people saw. And Bee Gees का म्यूजिक था एंड जॉन ट्रेवोल्टा का डांसिंग था. सी टिल 1981 में एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज और भी होता है, कमिंग इन ऑफ MTV. MTV is born for the first time. So before the 80s, music was essentially about लिसनिंग. 80s में जब से डिस्को आता है, म्यूजिक इज नो लॉन्गर अबाउट लिसनिंग ओनली, इट्स ऑल्सो अबाउट वॉचिंग. इट्स अबाउट मेलेडी से एक ग्रेजुअल मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द बीट, टुवर्ड्स द रिदम. तो इस चीज को जो जितने अच्छे से समझा वो उतना आगे बढ़ा. और इंडिया में डिस्को कम्स अगेन थ्रू द फॉरेन रूट. पहला फिल्म जिससे डिस्को गाना आया था वो है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, तो ये कुर्बानी का गाना था, नाजिया हसन. नाउ हाउ डिड दिस सॉन्ग कम? नाजिया वाज अ पाकिस्तानी गर्ल हु वाज इन लंडन. शी वाज अ टीनेजर एंड Firoz Khan was shooting had gone to London. He met a chap called Biddu. Biddu was a very famous Indian music composer who had done reasonably well in abroad, and he had done songs like there was a very kung fu fighting. अभी YouTube में करके देख लेना, मिल जाएगा. Carl Douglas. There's another song by Tina Charles called Dance Little Lady Dance. ये दो गाने उसके सुपरहिट गाने थे. तो उसने ये गाना कंपोज किया. Then and there was a particular tune, particular instrument he used in Hindi films for the first time. The sin drum. वो जो होता है ना, तो बात बन जाए तो ये जो साउंड है, ये पहली बार हुआ. और उसके बाद 80s में डिस्को बिकम्स मैंडेटरी. हर फिल्म में, मतलब अशोक कुमार और शशिकला जो 60 साल के हो चुके थे, उन्होंने भी डिस्को डांसिंग किया है फिल्म में. साजन मेरे में साजन की अशोक कुमार भी डांस कर रहे हैं. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मैंडेटरी कि अगर भाई डिस्को गाना नहीं होगा तो सेंसर आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी फिल्म का. ये हाल हो गया था फिल्म का. तो डिस्को का जो सुर था, डिस्को का जो बीट था, सबसे अच्छे से समझा बापी लहरी ने. बाकी लोगों ने भी किया, आर डी बर्मन गेव डिसेंट म्यूजिक ऑल, बट बापी लहरी अंडरस्टूड द बीट्स बेस्ट. एंड डिस्को के साथ साथ पहली बार हम 80s में और भी एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हिंदी फिल्म से हट के जो प्राइवेट एल्बम्स ये बनने शुरू हुए. ये नाजिया हसन के डिस्को दीवाने, रूना लैला का सुपर रूना, शरण प्रभाकर का चल चल डिस्को चल. इनफैक्ट आप लोगों को पता नहीं होगा कि महेंद्र कपूर और एक कनाडा का सिंगर हुआ करती थी मुसर्रत, इन्होंने मिल के बॉनीएम के भी 10 गाने गा लिए. जो वो गाने भी अभी हैं यूट्यूब में, आप सुन सकते हैं. सलमा आगा जो निकाह की हीरोइन थी, इन्होंने आबा के गाने का एल्बम निकाला, तो वहाँ पे हनी हनी जो है वो तौबा तौबा करके उन्होंने गाया. तो ये सब गाने भी बड़े हिट हुए. तो ये मतलब एक इस तरह का पूरा माहौल बना पूरा डिस्को का. लेकिन as I've said, my whole argument about my book is a counter argument, that it was not just these things. These are the songs, the disco का जो गाना है, या फिर जो इंदिवर के गाने जो लिखे ना उन्होंने, जो हिम्मत वाला में कि लकड़ी नहीं तो लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है. अब ये जो गाने थे, दिस डिटीज, हाँ, ये जो जिसको हम पहले तुकबंदी कहते थे, ये हिंदी फिल्म में आ गए. जबकि हिंदी फिल्म में पहले भी इस तरह से गाने हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पहले जो एक्सेप्शन रहता था वो अब रूल बन गया. व्हाट वाज अर्लियर, जो अपवाद था, वो अब वो बहुत ज़्यादा फ्रंट पेज हो गया. तो ये एक फंडामेंटल चेंज था. बट इफ यू रियली वांटेड टू से, आई कैन गिव यू सम नेम्स. लाइक इफ यू टेक द सॉन्ग्स ऑफ लव स्टोरी, जो था वेरी गुड सॉन्ग्स. लव स्टोरी, बेताब, अर्थ, साथ साथ, मनपसंद, खयाम के सारे फिल्म्स, हाँ, उमराव जान, बाजार, थोड़ी सी वेफाई, सिलसिला, चश्मे बदूर, और बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे उस तरह से, जैसे जयदेव. हाँ, उनके अनकही में उन्होंने 2 गाने भीमसेन जोशी से गाए. आप उन गाने को सुनिए. वन ऑफ देम गॉट नेशनल अवार्ड. दे आर फैबुलस सॉन्ग्स. अजीत वर्मन, हाँ, सच अ फैबुलस म्यूजिक डायरेक्टर. अच्छा, सारांश के गाने आप सुनिए. अच्छा, एक चीज़ ये भी होता था कि उस समय
जो बड़े फिल्म्स होते थे उनके रिकॉर्ड्स बनते थे और वो बिकते थे, कैसेट्स बनते थे। लेकिन बहुत सारी छोटी फिल्में थी, जैसे श्याम बेनेगल की फिल्में हैं, उसमें एक एक दो दो गाने ही हैं ज़्यादातर। अब मंडी के गाने अभी भी सुनो, आपको अच्छे लगेंगे, बट उस समय वो गाने चले नहीं क्योंकि वो कभी रिलीज ही नहीं हुए। सारांश में 2 गाने हैं जो अजीत वर्मा ने कंपोज किए हैं। वन ऑफ द सॉन्ग्स ढल गई, वो अमित कुमार की आवाज़ में है। इट इज़ probably the finest song he has sung. It's one of the beautiful songs written by Vasant Dev, who used to teach Hindi in Bombay. He was a professor, and so these kinds of things were happening. You know, like there were 2 universes. They were happening on parallel tracks, and we remember one of those tracks, but the other track is like lost to memory. So my book is a humble attempt to ensure that we don't miss out on the gems of the 80s. This decade is seen in perspective. Yes. Yeah. So, any questions from the audience? Yes. Haji. So initially you mentioned that because of the social changes that were happening, like cricket was being watched, then Hum Log and all serials were being watched by people, and they were not going in theaters to watch movies. So that affected the content. Or just the way you said that the films were being affected, the business of the films was getting affected, and then because of that, actor like Mithun Chakravarti got to fame. So did that also affect the content of the cinema, like these social changes? Did that affect the content as well? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये जो हम राइज देख रहे हैं हिम्मत वाला जैसे फिल्मों का, उनके गानों का, हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरह के फिल्मों का, उससे हुआ। और उसके बाद आप देखो वो 86-87 का फेज़ है ना, जिसमें हुकूमत जैसी फिल्में आ रही हैं। हाँ, जिसमें वो उस फिल्म में एक बड़ा मतलब मैंने अनिल शर्मा से बात किया था जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने उसमें एक फिल्म में एक विलन का नाम जावेद मियांदाद रख दिया था। हाँ, तो मैंने पूछा कि क्यों रखा उसका नाम, बोला नहीं उसने वो छक्का मारा था ना शारजाह में, हम लोग को हराया था, तो मुझे उसको विलन बनाना ही था। और वो फिल्म मतलब अच्छी खासी चली। तो यू नो पीपल वेर एमिंग एट अ सर्टन बेसमेंट ऑफ टेस्ट्स, एंड क्योंकि आप अगर एक कोर ऑडियंस को देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो आप, थोड़ा सा रिफाइनमेंट की तरफ आप नहीं जा रहे हो। सो ही सेड कि मैंने वो लोगों को उस तरह से फिल्म दिखाई, लोगों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि आप समझ लो कि आप तब तक सिर्फ टेस्ट मैचेस देखते थे, मैंने उनको टेस्ट मैचेस के ज़माने में T20 दिखाया था। Yeah, hello sir. I know that you have great study on movies. अब मुझे सिर्फ एक सवाल करना था कि सर आज भी आप मूवीज़ जो बनती है वो देखते हैं क्या, एंड स्पेशली पठान वगैरह टाइप की मूवी देखते हैं क्या आप? मैं पठान टाइप की मूवी देखता हूँ, लेकिन मैंने पठान देखा नहीं है। What made you think कि it should not be seen? नहीं, सिनेमा इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक फोरम। कोई फिल्म कैसी भी हो उसको तो बनना ही चाहिए। अब आप देख, वो तो डेमोक्रेटिक चॉइस की बात है, वो उसमें हम क्या कह सकते हैं। अगर सेंसर ने क्लियर किया है, इसका मतलब वो देखने लायक फिल्म है। आप उस पर अपना 500 रुपये या जितना खर्च करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। Hello sir. So I had a question कि how much do you think real life affects cinema, and how much does cinema affects real life according to you? में बड़ा गूढ़ प्रश्न है। Of course it affects real life. Symbiotic relationship है। Cinema is a mirror of society तो कहते ही हैं, but cinema also I think anticipates changes. You know, cinema is also an advanced guide to a lot of things. जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे होमोसेक्सुअलिटी पे 10 साल 15 साल पहले तक कोई फिल्म बनती नहीं थी, तो करण जौहर ने जब दोस्ताना बनाई तो उसमें एक तरह से द गाइज वर जस्ट प्ले एक्टिंग अ सिचुएशन,
कल हो ना हो में भी ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स थे ना जो एक थोड़ा सा दिखाया था. सो वो प्ले एक्टिंग सिचुएशन था. सो इन अ सेंस these films were kind of sussing the public mood. So they were like advanced experiments. Or what was not being shown, say 10 years or 15 years now, is now a routine commonplace now. So films anticipate and tell you also stories in their own way. Sir, is there a set formula for making a good movie, means commercially viable movie, like Manish Mundra, Ronnie Screwvala, these houses, they have probably the lowest percentage of flops. Manish Mundra, I believe he has been doing very well in contemporary cinemas largely. So, आपके हिसाब से कुछ ऐसा होता है क्या, और अगर है तो क्या, मतलब इन दोनों के अलावा मुझे किसी में दिखा नहीं है, आपके what are your views on this? नहीं, see there, in fact my book talks about कि how people who are constantly making hits, you know, मतलब in the 60s and 70s suddenly lost form in their 80s. I don't think there is any golden formula. मतलब आप हॉलीवुड का भी हिस्ट्री देख लीजिए. I mean finally सबका साइकिल कहीं ना कहीं बंद होता है. But you're right that these people have done some definitely good movies. But अगर कोई फार्मूला होता तो बाकी लोग भी उसको कर रहे होते. You always think that you have got the formula till the formula proves you wrong. वो हाँ. हेलो. हाँ जी. सर मेरे दो सवाल हैं. एक सवाल ये है कि जैसा 80s में म्यूज़िक तो चेंज हुआ, जो पुराने लोग थे उनको वो म्यूज़िक इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों ने थिएटर में जाना या फिल्में देखना कम कर दिया होगा. और उसके साथ में और एक इम्पॉर्टेंट ये था कि विलन जो था हिंदी फिल्म का, जो एक बहुत ही अहम मतलब रोल निभाता था, यानी खलनायक ये वर्ड में ही एक नायक वर्ड भी आता है. तो जैसे प्राण साहब हो गया, अजीत हो गए, तो इनको जिन लोगों ने देखा है उसके बाद ये पप्पू पेजर, मोगैम्बो, इस टाइप के जो विलन्स आना शुरू हो गए, तो ये भी एक कारण है क्या उसमें? नहीं, विलन देखिए, जो 80s के जो विलन है ना, दे हैव बिकम लार्जर देन लाइफ. 80s के विलन्स जो हैं दे हैव बिकम लार्जर देन लाइफ. जो आप तीन विलन्स भी समय के साथ बदलता रहता है ना. जैसे कि हम, मेरे दोस्त हैं बालाजी विटल, उन्होंने किताब भी लिखा है इस पे, द ईविल करके, उन्होंने, मैं नाम नहीं आ रहा था कि ईविल करके उन्होंने लिखा है. तो पहले के जैसे अगर आप देखें 50s के विलन्स जो हैं वो काला बाजारी वाले होते थे, सूदखोर होते थे. हाँ, 70s 80s तक आते आते 70s में आते आते स्मगलर्स बन गए विलन. 80s में आते आते ना जैसे जैसे टेररिज्म वगैरह बढ़ रहा है तो उसके विलन्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं. दो बहुत बड़े विलन्स हैं ना, एक डॉक्टर डैंग, थप्पड़ की गूंज वाले डॉक्टर डैंग, तो ही इज अगेन वेरी वेरी बिग विलन. फिर मोगैम्बो थोड़ा आउटलैंडिश है पर उसका भी बहुत बड़ा ये है. फिर मेरे ख्याल से हुकूमत में था जोंग, जो कभी रॉन्ग नहीं होता, वो है आई थिंक, वो उसका मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा फिल्म है, बट ही इज ऑल्सो देयर. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग विलन इज कि किस तरह से ना बॉलीवुड का एनमेशिंग हो रहा है विथ बॉन्ड. शाकाल इज अ बॉन्ड विलन, बट अगेन उसी लेवल का है. सो धीरे धीरे, हालांकि 80s में बहुत अच्छे खासे रहे हैं, फिर भी 80s में डाकू भी विलन रहे हैं बहुत. 60s 70s 80s में डाकू विलन रहे हैं. लेकिन अगर आप फिलहाल देखें तो अब डाकू विलन नहीं होते, डाकू है नहीं, क्योंकि वो पिछले 10-15 साल में डाकू जो हैं वो हाँ, उनके कपड़े चेंज हो गए. और एक दूसरा जो सवाल था ये था कि 75 में इमरजेंसी लगने के बाद फिर ऑलमोस्ट 2 साल शायद बंदी थे. किसका बोल रहे हैं? इमरजेंसी जैसे लगी थी 75 हाँ, हाँ, हाँ. तो उसका कुछ इफेक्ट हुआ क्या पिक्चर्स पे 80s, जो अर्ली 80s या इसमें? नहीं, इमरजेंसी के समय तो हुआ था. इमरजेंसी के समय 75 to 77 के पीरियड में कई चीज़ें ऐसी देखने को मिली थी उस समय जो अभी भी देखने को मिली है. जैसे अभी कई बार आप ऐसी फिल्में देखेंगे जिसमें सरकार की ज़बरदस्ती मतलब तारीफ हो जाती है, एक दो लाइन डाल देते हैं. इमरजेंसी के समय भी ऐसा हो रहा था.
वो हो रहा था। इमरजेंसी के समय और भी कई चीज़ें ऐसी हुई थी, जैसे कि शराब पिलाना स्क्रीन में मना कर दिया गया था। तो अचानक अब देखना कि आप देखोगे कि कई फिल्में ऐसी हैं जहाँ पे एक नॉर्मल समय में वो शराब देना चाहिए, लेकिन वो कोका कोला पी रहे हैं उस समय। फिर इनफैक्ट एक फिल्म है आप बीती, उसका मैंने मेंशन भी किया है। उसमें 77 की फिल्म है जिसमें कोई घूस लेने जाता है, कोई आदमी, मतलब कोई इंस्पेक्टर उसको घूस देना चाहता है कोई, तो बोलता है नहीं आजकल ये सब नहीं चलता, आजकल सरकार बहुत कड़क हो गई है। इस तरह के डायलॉग्स है। तो छोटा मोटा रिफ्लेक्शन होता है, बट पोस्ट 77 ना, मतलब वो धीरे धीरे कुछ खास उस तरह से उसका इफेक्ट रहा नहीं। Okay, I think we are running out of time. Yes. So, but Avijit sir is here, so you can get your books, get them signed from him, and you can interact with him. He'll be at the signing desk. Yeah. There are 2 signing desks. One is outside Lebanon, one is downstairs. You can find him at either one of those. Thank you so much, sir. It was a wonderful, wonderful session. It was very entertaining. I would like to invite author Swapna Little to present a token of appreciation to Avijit sir. And a small gift hamper for our wonderful moderator, Rasavari. Thank you so much, everyone.